તો ભગવન થવાની, પરંતુ મને મારા કર્મો નડે છે. હસીને જે બાંધ્યા કરમ ભારે કેવા, ઉદયમાં જો આવે તો આંખો રડે છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની. પ્રભુ તારો માર્ગ છે એક સુરાનો, પ્રભુ તારો માર્ગ છે એક સુરાનો, એ માર્ગ જે આવે મળે મુક્તિ, એ માર્ગ જવાને કદમ હું ઉપાડું, એ માર્ગ જવાને કદમ હું ઉપાડું, ત્યારે મારું સત્વ ઓછું પડે છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની. સહન શક્તિ માંગુ, સમજ શક્તિ માંગુ, સહન શક્તિ માંગુ, સમજ શક્તિ માંગુ, હું માંગુ છું સદગુણને સાચી ભક્તિ, મને ખાતરી છે હું માંગુ એ મળશે, મને ખાતરી છે હું માંગુ એ મળશે, પરંતુ જોડી નાની પડે છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની. પ્રભુ તું છે શુદ્ધ, હું દોષોથી યુક્ત, પ્રભુ તું છે શુદ્ધ, હું દોષોથી યુક્ત, હું બંધનમાં કેદ તું કર્મોથી મુક્ત, હું જેવો છું તેવો પ્રભુ તોય તારો, હું જેવો છું તેવો પ્રભુ તોય તારો, સ્વીકારીશ મને તું, મને તે ખબર છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની. ઘણી દૂર છે મંજિલ ને રસ્તો અજાણ્યો, ઘણી દૂર છે મંજિલ ને રસ્તો અજાણ્યો, તું છે સાથી મારો, તું જ સહારો, પહોંચવું છે મારે એ મંજિલ સુધી, પણ પહોંચવું છે મારે એ મંજિલ સુધી, પણ મને તારી કૃપાની હૂંફની જરૂર છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની, પરંતુ પુરુષાર્થ ઓછો પડે છે, હસીને જે બાંધ્યા કરમ ભારી કેવા, ઉદયમાં જો આવે તો આંખો રડે છે, જે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની, છે મુજને તમન્ના તો ભગવન થવાની. જય જીનેન્દ્ર. આપણે જે ટાઈમ છે હજી એક લેવાની નયનભાઈ. દર્શનાબેન કોણ કરવાનું? દર્શનાબેન. હા, એમને હાઇલાઇટ કરો. એનો વિડીયો પણ છે. દર્શનાબેન તમારો વિડીયો ઓન કરો. હા, હમણાં ઓન જ હતો. હા, હવે દેખાડો. અચ્છા, રાજેશભાઈ માં છે, એક નો દેખાડો. Okay, we can hear you. Carry on, Dashnabe. हे उपकारी
कृपा वरसावो शीतशिलाए मन तेड़ावो राह जो प्रभु आवशे ने लई जाशे प्रभु आवशे ने लई जाशे जन्मोनी प्रीति मारी आँखो बोले आंसुओं ना सागर छलके युग युग ना स्वामी तमे हय्यू बोले प्रीतमा मारू मनडू दोले हय्यू मारू हवे नहीं बस मां ओ भगवंत मने पास बोलावो शीत शिलाए मन तेड़ावो राह जो प्रभु आवशे ने लई जाशे प्रभु आवशे ने लई जाशे तारो मार्ग लागे मने प्यारो प्यारो आपो मने वेश तमारो पाप नथी रे करवा मारे आजीवन मां संयम केरा भव प्रगटावो मार्ग साचो आ जग मां मळजो मने आ भव मां ओ वितरागी राग तोड़ावो वैरागी ना भव प्रगटावो राह जो प्रभु आवशे ने लई जाशे प्रभु आवशे ने लई जाशे प्रभु आवशे ने लई जाशे। जय जिनेन्द्र। Thank you, Dashnaben. Vandami Naman Swami Samanji. Jai Jirendra, Bhayo Beno, Varilo. Welcome to day 6 evening Swadhyay with Samanji on Saman Suttam. I hope sau bhayo beno જે તપશ્ચર્યા કરે છે એમને સુખ સાતા હશે અને સંગ વચ્ચે અમે બધાને સાતા પૂછીએ છે. We had a tally of the list just before session શરૂ કર્યું ને લગભગ અત્યારે 24 નામ આપણે મળી ગયા છે. આપણા સંઘમાં 24 તપશ્ચર્યા છે જે 28 ની ઉપર થશે આ શનિ રવિવાર સુધીમાં. So ખૂબ અનુમોદના to all tapasvis, and the management committee is now planning on how we do the Samoparna. I'll talk a little bit more about this at the end of the pravachan. But first, the session for this evening, Saman Suttam, day 6 evening, Samanji is going to lead us on the topic of Kevu Che Karma No Chakra, right? So without further ado, let me hand over to Samanji. Samanji. नमस्कार महामंत्र चालू करीशु. हेलो हेलो. ओम नमो अरिहंताय. ओम नमो
सिद्धाणम् ॐ नमो ॐ नमो आयर्याय ॐ नमो आयर्याय ॐ नमो वज्रायणम् ॐ नमो नमो लोये सवसाहो नमो लोये सव एसो पंचन मुक्तारो एसो पंचन मुक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां मंगलाणं च परमं अवै मंगलम् परमं अवै मंगलम् 2-3 मिनट ध्यान स्थिति कमर गर्दन सीधी आंखें बंद शरीर स्थिर मन शांत चित्त ने श्वासोश्वास पर एकाग्र करें आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें चेतना का उपयोग पूरे के पूरा श्वास पर 3 मिनट में कोशिश करें एक भी श्वास चुके नहीं बिना अवेयरनेस श्वास न चले तीन बार ओमकार नाद प्रयोग सम
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम प्रयोग सत्य। ज्ञानमूलम् गुरुर्मूर्ति पूजामूलम् गुरुपदम् मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुकृपा मोक्षमूलम् गुरुकृपा। आज पर्युषण पर्व का छठा दिन लगभग परिसमाप्ति पर सिंगापुर जैन संघ द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन पूरे उत्साह के साथ, पूरे अहोभाव के साथ हम मना रहे हैं। जितने भी लोग सिंगापुर वाले, भारत वाले और अन्य जहां से भी लोग जुड़े हैं, उन सबको मेरी ओर से ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं, कैसा है कर्म का चक्र, उस पर पहले दो गाथा सुन लेते हैं, फिर हम उसके विस्तार में चलते हैं। गाथा नंबर 57। जम जम समयं जीवो आविषये जेण जेण भावेण सतम्मित समये शुभाशुभं बन्धयेकं मम शुभाशुभं बन्धयेकं मम। तो कैसा है कर्म का चक्र? कल हमने संसार चक्र को समझने की कोशिश की। उस संसार चक्र का कारण है कर्म चक्र। कर्म चक्र जितना मजबूत, उतना संसार चक्र मजबूत। कर्म चक्र
जितना लाइट हल्का उतना संसार चक्र कमजोर। कर्म के चक्र को समझने के पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि कर्म क्या है। जैन दर्शन में इसको जैन दर्शन में ठीक 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 कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा ठीक। हेलो हेलो। आज क्या है कि यहाँ पर बारिश आ रही है, हवा भी है, इसलिए थोड़ा सा आवाज कभी कभी डिस्टर्ब होगा। चारों तरफ बारिश गिर रही है और हम रूफ के नीचे बैठे हैं आपके साथ में, इसीलिए हवा के झोंके से भी जरा स्पीकर की आवाज डिस्टर्ब होती है। कोशिश करेंगे, भावना करेंगे ठीक चले। तो मैं बात कर रहा था कि कर्म क्या है। 2-3 मिनट का समय लूंगा ताकि इस चक्र को समझ सके। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म प्रवृत्ति का नाम कर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म एक्टिविटी करने का नाम कर्म नहीं है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म सुबह से शाम तक सक्रिय रहकर काम करने का नाम कर्म नहीं है। जैन धर्म में कर्म का अर्थ क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है। जैन धर्म में कर्म का अर्थ है द रिजल्ट ऑफ द intention of action is called कर्म। जैन धर्म में कर्म की परिभाषा है क्रिया करने का जो रिजल्ट है, परिणाम है, और वो क्रिया आप जिस इंटेंशन से करते हो। कोई भी क्रिया जब कोई भी इंटेंशन से की जाती है, उस इंटेंशन से की जाने वाली प्रवृत्ति का परिणाम, उसका नाम कर्म। फिर बोलूं मैं, किसी भी इंटेंशन से, हेतु से, मोटिव से की जाने वाली प्रवृत्ति का परिणाम जो है वो कर्म। तो जैन धर्म में क्रिया कर्म नहीं है, जैन धर्म में प्रतिक्रिया कर्म है। रुमाल क्या सॉरी, आज थोड़ा डिस्टर्ब होगा। हाँ ओके।
गई। ठीक, ओके। थोड़ा, हाँ, हेलो हेलो, हाँ, थोड़ा देख लेते 2-3 मिनट, नहीं तो बिना माइक करेंगे। तो ठीक है, कोई भी क्रिया जब करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का जो रिजल्ट आता है वो कर्म। मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर में कोई साधु गोचरी आया और आपने मन में सोचा कि मैं समाज में बड़ा आदमी हूं, मेरी इज्जत है, मेरे अंदर बहराने का भाव नहीं है, मैं साधु को मानता भी नहीं हूं, साधु के प्रति मेरी श्रद्धा भी नहीं, लेकिन समाज में एक मेरी इज्जत है ना, तो साधु फिर गांव में जाकर चर्चा क्या करेगा कि सेठ के वहां गया, कुछ दिया नहीं, कुछ बहराया नहीं। तो अपनी इज्जत के लिए, सम्मान के लिए एक साधु के पात्र में वो श्रावक कुछ बहरा रहा, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, जो भी है, जो भी मूल्यवान चीजें हैं, चीजों की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि बहुत रीच है, लेकिन संत के प्रति, साधु के प्रति कोई भाव नहीं है। तो इंटेंशन गलत है। एक्शन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज बहरा रहे, लेकिन इंटेंशन ठीक नहीं है, उसके कारण उसका हो सकता है 10% पुण्य का बंध हो, 90% पाप का बंध हो। समझ रहे हैं? क्योंकि intention of action, the result of intention of action is the karma. इसका अर्थ यह है कि कर्म आप क्या करते हो उस प्रवृत्ति को नहीं देखता है। बराबर गौर फरमाना, कर्म आप फिजिकली क्या कर रहे हो उस क्रिया को नहीं देख रहा है, कर्म आप करने वाले कौन है, करने वाले का भाव क्या है, कर्म उसको पकड़ता है। और भाव दिखता नहीं है, प्रवृत्ति दिखती है। कर्म दिखने वाली चीज को एक्सरे में नहीं लेता है, कर्म आपके भीतर एक्शन करने के भीतर में इंटेंशन पीछे क्या है उसको पकड़ता है। इसका अर्थ यह है कि प्रवृत्ति कैसे भी करनी पड़े, प्रवृत्ति पाप की भी मजबूरी वश करनी पड़े, लेकिन इंटेंशन हमेशा शुद्ध रखना, इंटेंशन हमेशा पवित्र रखना, क्योंकि सारा मामला कर्म का इंटेंशन के ऊपर टिका हुआ है। एक आदमी अच्छी प्रवृत्ति करते हुए भी इंटेंशन बिगाड़ सकता है, एक आदमी पाप करता हुआ भी इंटेंशन अच्छा रख सकता है। वो अंदर के भाव के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा इंटेंशन कैसा है। दूसरी बात भी मैं विनंती कर दूं, जैन दर्शन में कर्म जो है वह जीवित चीज नहीं है। जैन दर्शन का कर्म जीव नहीं है, अजीव है। जैन दर्शन का कर्म चेतन नहीं है, उद्गल है। वो आज एक श्लोक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कर्म जड़ है, मैटर है, मटीरियल चीज, उसकी मैं बात करूंगा। अब मैं श्लोक में प्रवेश करता हूं। पहला श्लोक ये कहता है कि जिस समय जीव जैसा भाव धारण करता है, ये प्रवचन नहीं है, क्लास चल रही है, क्योंकि मैं समण सूक्तम ग्रंथ ले रहा हूं, इसलिए एक एक श्लोक का मैं मेरे ढंग से
विवेचन कर रहा हूं। जिस समय जीव जैसा भी भाव करता है उस समय जीव उसी प्रकार का शुभ या अशुभ कर्मों द्वारा बंधता है। सिंपल इस गाथा में ये कहा गया है कि जैसा भाव वैसा कर्म। देखो यह प्रवृत्ति की कोई बात ही नहीं की इस गाथा में। जैसा भाव, व्याख्यान सुनते समय भाव सुनते सुनते बिगड़ भी सकता है। कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी में चर्चा छेड़ दो, आपकी श्रद्धा को कभी कभी कहीं ठेस पहुंच जाए। व्याख्यान सुनते सुनते, महावीर की वाणी सुनते सुनते भाव बिगड़ भी सकता है। भाव का तो कोई भरोसा नहीं, स्टॉक मार्केट जैसा है, कब ऊपर जाए कब नीचे आए कोई गारंटी नहीं। इसीलिए जैसा भाव होता है वैसा शुभ अशुभ कर्म का बंध होता है। थोड़ा सा मैं समझ लूंगा इस श्लोक के लिए। यदि व्यक्ति के अंदर अपने प्रति अहंकार का भाव आ जाए, मेरे पास पैसे ज्यादा है, पैसे का अहंकार आ जाए, मेरे पास रूप ज्यादा है, रूप का अहंकार आ जाए, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान का अहंकार आ जाए, मेरे पास तपश्चर्या करने की शक्ति ज्यादा है, 1 मिनट में एक साथ मासक श्रमण के पचकान ले सकता हूं, इतनी मेरा सामर्थ्य है, उसका अहंकार आ जाए, कर्म बंध जाता है। उसी समय जिस क्षण भाव किया उसी क्षण कर्म बंध जाता है। कर्म उधारी को नहीं मानता है, कर्म केस बिजनेस को मानता है। ऑन द स्पॉट जैसा भाव किया उसी समय कर्म बंध। तो ये पहली बात। अगर आदमी थोड़ा डिस्टर्ब आपको हो रहा होगा शायद, तो ऐसे ही करते हैं, मैं थोड़ा धीमे बोलूंगा। तो जरा एग्जांपल ले ले। जैसे 8 समझ ले बराबर, मैंने अहंकार किया, अच्छा काम किया कि बुरा काम, अच्छा भाव किया कि बुरा भाव, बुरा। अच्छा कर्म बंधेगा कि बुरा कर्म, बुरा कर्म। अकॉर्डिंग टू जैन शास्त्र, अकॉर्डिंग टू जैन शास्त्र किसी भी प्रकार का अहंकार करने से व्यक्ति का नीच गोत्र कर्म बंधता है। आज आपको 8 कर्म का विज्ञान थोड़ा समझना पड़ेगा। कोशिश करें जो लोग नोट्स ले रहे हैं फोन पे या डायरी पे, 8 कर्म को दिमाग में जमा लो। इस बार सिंगापुर में मैंने पूरा उल्टा चक्र चलाया है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पूरा उल्टा चक्र इंटेंशनली चलाया। वो उल्टा चक्र ये चलाया है कि क्लासिकल लेक्चर, तत्व के लेक्चर रात को रखा है और प्रैक्टिकल लेक्चर मैंने सुबह रखा है। आपने नोट किया होगा क्योंकि रात को जनरली लोग आते हैं, मास ग्रुप होता है,
प्रैक्टिकल टॉपिक होता है, बहुत अच्छा लगता है। स्वामी जी बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। इस बार रात को सुनने वाले को थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है ना। सुबह सुबह क्लासिकल लेक्चर होते हैं, तो सुबह जो लेक्चर में आते हैं वो सब विद्वान हो जाते हैं। शाम को जो लोग आते हैं वो बस थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ा सा दो चार अच्छे शब्द कान में पड़ जाती। मैंने इस बार जानबूझ के उल्टा किया है, पूरे के पूरे। देखो, नए प्रमाण और निक्षेप वो चर्चा में रात को करूं, ओ हो, और आप लोग मुझे सुने, यही सबसे बड़ी तपश्चर्या है। उपवास नहीं हो तो चलेगा। हालांकि अभी बताया परेश भाई ने कि 20, 25, 30 28 हो रही है। मैंने तो कभी कोई प्रेरणा भी नहीं दी, लेकिन ये एक क्षेत्र का और एक काल का प्रभाव होता है कि आदमी को करने का मन होता है। कभी उपवास नहीं करते वो भी आदमी 8-8 उपवास कर लेता है। तो ये क्लासिकल लेक्चर है, 8 कर्म बराबर जमाने पड़ेंगे आज दिमाग में। इसलिए मैं खोल रहा हूं गाथा को कि अगर आपने अहंकार किया तो आपको नीच गोत्र कर्म का बंध होगा। 8 कर्म में एक कर्म का नाम है गोत्र कर्म। मैं ऑर्डर में नहीं बोल रहा, फिर ऑर्डर में बात करूंगा, एक गाथा पूरी आएगी। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कि जैसा भाव करने से वैसा कर्म बनता है। तो मैंने अहंकार का भाव किया, नीच गोत्र बंध गया। नीच गोत्र बंध गया का मतलब है अगले जन्म में मैं भंगी या हल्के कुल में, जहां जन्म के साथ अभक्ष्य खाना पड़ेगा, जन्म के साथ पाप करना पड़ेगा, जन्म के साथ मेरा चॉइस ही नहीं है, मुझे जो कुछ मेरी माँ खिलाएगी, मांस तो मांस मुझे खाना पड़ेगा। ये नीच गोत्र। नीच गोत्र का मतलब है हल्के कुल में, छोटे कुल में जन्म लेना। हमारा जन्म जैन कुल में हुआ, हमारा जन्म हिंदू परंपरा में हुआ, हमारा जन्म ऐसे घर में हुआ कि जहां जन्म के साथ में नवकार मंत्र गिना जाता है, जहां जन्म के साथ में गायत्री मंत्र बोला जाता है, जहां जन्म के साथ में ओंकार नाद की ध्वनि की जाती है। हम जन्म के साथ में ऐसी अनार्य भूमि में नहीं जन्मे कि मेरे मुंह में पहला ही कोर मेरी माँ ने मांस के टुकड़े के रूप में डाला। इसका मतलब है पिछले जन्म में मैंने अहंकार नहीं किया था, इसलिए मेरा जन्म उच्च गोत्र में हुआ। हमारा गोत्र कौन सा है? जितने लोग सुन रहे हैं और भी बहुत सारे जो सारे संस्कारों से जिंदगी जी रहे हैं, हमारा कुल उच्च गोत्र है। तो उच्च गोत्र में जन्म हुआ है कारण कि पिछले जन्मों में हमने कभी किसी चीज का अहंकार नहीं किया। आ गए मनुष्य योनि में, अच्छे संस्कार में, अच्छे परिवार में, जहां जन्म से एक धर्म का माहौल। अब अगर मेरे पास धन, ऐश्वर्य, ज्ञान, तप, रूप, लाभ, ये सारी चीजें अगर मुझे मिली है और मैं उसका अहंकार करूं, याद रखना ये सारी चीजें क्यों मिली है? पुण्य से कि पाप से? धन क्यों मिला? रूप क्यों मिला? ऐश्वर्य क्यों मिला? ज्ञान क्यों मिला? तप करने की ताकत क्यों मिली? पुण्य से कि पाप से? पुण्य से। अगर अब मैं अहंकार करूं तो मैं पुण्य कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं? पाप कर रहा हूं। और वो पाप किया, अगले जन्म में मेरी नीच गोत्र की गति तैयार है। यह है नीच गोत्र। उसी तरह अगर मैं इस जन्म में विनय भाव रखूं, सब कुछ मुझे भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन मेरी हम्बलनेस को कोई छीन नहीं सकता साहब, वो बिल्ट इन मेरी आत्मा में संस्कार है, तो अगले जन्म में इस जन्म से भी ज्यादा ऊंचे गोत्र में मेरा जन्म। अभी तो मैं एक सामान्य व्यापारी के घर में जन्मा हूं, हो सकता है अगले जन्म में सेठ के घर जन्म हो, सम्राट के घर में जन्म हो, और अधिक प्रभावशाली पुण्यात्मा के घर जन्म।
पूरा कर्म का गणित यह है, आप समझ लेना। यहाँ जो भाव किया, कर्म बंधा, और वो कर्म के अनुसार आपकी गति अगले जन्म में वहां पैदा होने की। दूसरा एग्जाम्पल, इसी तरह से मैं 8 कर्म याद करा देता हूं। अभी एक कर्म मैंने याद करा दिया, गोत्र कर्म। क्लियर हो गया गोत्र कर्म? उसके लिए अलग से पूरा श्लोक आएगा, तो थोड़ी बात करूं। अहंकार किया तो नीच गोत्र, विनय भाव रखा तो अगले जन्म में ऊंच गोत्र। गोत्र का मतलब है खानदानी कुल में जन्म लेना या पापी कुल में जन्म। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मेरी आंख के सामने मुझे कोई ज्ञानी दिखाई दे, ज्ञानी साधु भी हो सकता है, आचार्य भी हो सकता है, और तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाला कोई व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है, बहुत बड़ा टैलेंटेड, स्मार्ट, जीनियस ज्ञानी हो सकता है। उसको देखकर, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं रहता है, बार बार भूल जाता हूं, मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आती, और एक व्यक्ति इतना जीनियस, इतना टैलेंटेड, इतना विद्वान, उसको देखकर अगर मेरे में ईर्ष्या पैदा हो जाए, तो जैन धर्म कहता है तुमने ज्ञानावरणीय कर्म बांध लिया। कौन सा कर्म? 8 कर्म। अब भी 5 मिनट में आपके गले उतार रहा हूं। इसका नाम है ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला कर्म बांध। शायद आपको भी पता नहीं होगा कि आपने कर्म बांध लिया, शायद सामने वाले को भी पता नहीं होगा जिसके प्रति आपने ईर्ष्या की कि आपने कर्म बांध लिया, लेकिन कर्म की अदालत में आप कैद हो गए और आपके ज्ञान के ऊपर जबरदस्त भारी पर्दा लग गए। ज्ञान का अहंकार करने से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है, ज्ञानी आदमी को देखकर ईर्ष्या करने से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है, और कोई आदमी कि ज्ञान की वस्तुएं हैं, उस ज्ञान के ग्रंथों का, ज्ञान के शास्त्रों को मैं रिस्पेक्ट ना करूं और ज्ञान के ग्रंथों को इधर उधर रख दूं, तो भी मेरा ज्ञानावरणीय कर्म बंधता। ज्ञानी के प्रति द्वेष करूं तो भी मेरा ज्ञानावरणीय। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला श्लोक, जैसा भाव वैसा कर्म, ज्ञानावरणीय। नंबर 3, जानबूझकर मेरे हाथ पर मच्छर बैठा और वो मच्छर मुझे काट रहा था, मैंने जानबूझकर जोर से थप्पी मार के उस मच्छर को मैंने मारा, और वो मेरा खून चूस रहा है, उसको मारे ने तो क्या, उसको मैंने पंपाड़े बिना मतलब, बिना इनविटेशन दिए, बिना आमंत्रण दिए, सीधा के बचका भर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? तो सीधा मैंने हाथ करके उसको मार दिया ताकि खेल खत्म। जैन धर्म कहता है कि तुमने असाता वेदनीय कर्म बांध। असाता वेदनीय कर्म का अर्थ है तुमने बीमारी का कर्म बांध। अब तुम बीमारी के लिए तैयार रहना। ऐसी क्रोनिक बीमारी आएगी, डॉक्टर भी तुम्हें मदद नहीं कर सकते। 4 स्टेज कैंसर, कोई भी बीमारी, XYZ, कोई भी बीमारी आती है, कुछ सूत्र दिमाग में आज जमा लेना मेरे मित्रों। रात का टाइम है, तत्व की चर्चा सुनने का मौका मिला है। जैसे ही मैंने किसी जीव की, निर्दोष जीव की बिना कारण हत्या की, बीमारी का कर्म बंध गया, जिसको जैन धर्म में कहते हैं असाता वेदनीय कर्म। या फिर मैं थोड़ा पॉजिटिवली बोलूं, मेरे मन में आया कि मूक पशु प्राणी है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बोल नहीं सकते, डिमांड नहीं कर सकते। मेरे मन में आया कि लाओ मैं उसकी जरा सेवा करूं, और गायों को मैंने प्रेम से चारा डाला, उसकी
पीठ पर थपथपाकर हाथ घुमाया और उसको साता पहुंचाने की कोशिश की। जैन धर्म कहता है तुमने साता वेदनीय कर्म बांध लिया। साता वेदनीय कर्म का मतलब है तुमने निरोगी होने का कर्म बांध लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, अहंकार मत करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी खाए कुछ भी पिए उसके शरीर में कोई बीमारी आती नहीं। लो, आपने देखे होंगे ऐसे लोग, जीवन भर सिगरेट पिए कोई बीमारी नहीं। और एक आदमी बहुत खाने पीने का, हरने फरने घूमने का नियमित ध्यान रखे, योगा करे, प्राणायाम करे तो भी बीमार। कैसे व्याख्या करोगे इस सूत्र की? चलो, सिगरेट पीने वाला कहता है 90 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, अब तो जितनी जिंदगी बोनस में जी रहा हूं, अब पी पे के मरूंगा तो भी मुझे पछतावे की जरूरत नहीं। बोलो, अब इसकी व्याख्या कैसे करोगे? इसकी व्याख्या जैन धर्म कहता है कि उसने पिछले जन्म में ऐसा साता वेदनीय कर्म बांधा है कि उसके शरीर में सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए। और मैंने देखा अमेरिका में एक भाई खुद वीगन 20-25 साल से डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाता है, वापरता है। वीगन, नो डेयरी प्रोडक्ट, घी नहीं, दूध नहीं, छाछ नहीं, मक्खन नहीं, दही नहीं, शरीर एकदम सिंगल बॉडी परफेक्ट, अलमस्त रहने वाला आदमी। आर्टरी ब्लॉक, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी। क्या मानोगे इसको आप? कहीं ना कहीं कर्म काम कर। तो ये है, मैंने अगर किसी की जीव दया की, मैंने किसी को जीवों को साता पहुंचाई, गाय को प्रेम से चारा खिलाया, मूक प्राणियों की मैंने मदद की। 5 ऐसे कुत्ते थे जिसके शरीर में बीमारियां थी, डॉक्टर को बुलाकर मैंने उसकी ट्रीटमेंट करवाई। साहब, आपको भी पता नहीं होगा, आपने साता वेदनीय कर्म बांधा। अब किसी जन्म में थोड़ी गड़बड़ी भी करो ना, आपका कर्म आपको बचा ले, बचा ले। लगभग 35-40 साल से तो मैं इस अध्यात्म की लाइन पर हूं। कितनी कंट्री का पानी पीता हूं, घूमता हूं, कितनी इंटेंसिव लाइफ है, और गोचरी करके खाता हूं, भिक्षा मांग कर खाता हूं। आज तक 30-35 साल में मैं कभी बुखार में लेटा हूं या कभी मुझे सिर दर्द हुआ हो, आज तक मुझे याद नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी सावधानी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैंने कोई जीव दया का कार्य पिछले जन्म में किया होगा, आज मुझे वो सपोर्ट कर रहा है। बराबर इस कर्मों को हमारे व्यवहार के साथ जोड़कर समझना, लाइफस्टाइल पूरी बदल जाएगी। तो ये 2 प्रकार के कर्म, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। साता वेदनीय से शरीर तंदुरुस्त रहता है, असाता वेदनीय से शरीर बीमार रहता है। जब भी हम साधु संतों को मिलते हैं, दर्शन करते हैं, कोई संयमी को, ज्ञानी को, तो हाथ जोड़कर हम हमारे संस्कार के अनुरूप पहले वंदन करके क्या बोलते हैं? सातामा छो। अपने तपस्वियों शू कहिए? सातामा छो। आ साता शब्द क्यांथी आव्यो? साता वेदनीय कर्म मांथी आ साता शब्द आव्यो छे। साता छो, सातामा छो, एक्चुअली तो आखું બોલવું જોઈએ, સાતા વેદનીય કર્મ કેમ છે, પણ આટલું બધું બોલે તો પછી ગડબડ થાય, એટલે સીધો એક ટુકડો પકડી લીધો, તમે સાતામાં છો, એનો મતલબ તમારી તંદુરસ્તી બરાબર છે, આ એનો અર્થ છે। પણ તમે જો એમ પૂછો કે તમારી તંદુરસ્તી બરાબર છે, તો અમારા જેવા સમજી જાય જૈન ધર્મનો ક ખ ગ આવડતો નથી। પણ જેવું તમે પૂછો સાતામાં છો સમણજી, આપણને એમ થાય કે કેટલો સંસ્કારી છે, કાંઈ સંસ્કારી ન હોય, પણ આ શબ્દ જો આટલો બોલી લો ને તો તમને પ્રમાણપત્ર મળી જાય। લો, આ શબ્દની ગરિમા, એટલે મેં તમને નવી વખતે વાત કરી હતી, કઈ
કયા સંદર્ભમાં કયો શબ્દ વાપરવો એ નઈ છે. મેં વાત કરી હતી તમને. નઈ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સાધુ માટે સાતા શબ્દ જ વપરાય. તમારી તંદુરસ્તી કેમ છે, તમારું આરોગ્ય કેમ છે એ ના પૂછાય. સાધુ માટેની ડિક્શનરી અલગ છે. મારા ઘરે જમવા આવો એમ ના કહેવાય સાધુ. મારા ઘરે ગોચરીનો લાભ આપવા વિનંતી એમ કે જમવા આવો એમ ના. चलो तो साता वेदनीय असाता वेदनीय हो गया क्लियर. आगे चलूं मैं. अगर आपने कोई जीव विकसित हो रहा था और किसी जीव की आपने मूल से हत्या कर दी, किसी जीव को जानते अजानते आपने मार दिया. दूर कहां जाऊं, चलो ने क्या बोलते हैं स्प्रे करते उसको क्या बोलते हैं, प्रेस कंट्रोल. प्रेस कंट्रोल तो सिंगापुर में भी करते होंगे, अमेरिका में भी करते होंगे. पहले दवाई छांटते हैं, ये बग ना आ जाए, जीव ना आ जाए, मच्छर ना आ जाए, तो ये पूरा प्रेस कंट्रोल करते हैं. अगर एक भी जीव नहीं हो और आप प्रेस कंट्रोल करो तो कोई बात नहीं, इट इज द प्रिकॉशन. लेकिन अगर चिंटियां आ गई, अगर बग आ गए, अगर कॉकरोच आ गए और आपने प्रेस कंट्रोल किया और जितने जीवों की हत्या हुई, उससे जैन धर्म कहता है आपका आयुष्य कर्म बंध गया. कौन सा आयुष्य? शॉर्ट आयुष्य का बंद हो गया. अब अगले जन्म में आप 15 साल से ज्यादा नहीं जी सकते अगर मनुष्य बने. क्यों कोई व्यक्ति छोटी उम्र में 10 साल में, 15 साल में, बचपन में, अरे जन्म के 2 दिन के बाद में, अरे गर्भ के अंदर कोई आदमी प्राण छोड़ देता है. कारण क्या? कहीं ना कहीं उसने किसी की हत्या की है, जानते या अजानते. इसलिए कोई जीव मरता है तो आपके आयुष्य को वो डैमेज करता है, याद रखें. और आगे चलूं. कोई व्यक्ति आपके सामने आया, आंखें तो खुली है तो सब आएगा ना, दुनिया थोड़ी कोई आपके कारण छुप जाएगी. आपके सामने कोई व्यक्ति आया, रूप रूप का अंबार, आपके सामने कोई स्त्री आई, कोई बहन आई, कोई वुमन, और रूप रूप का अंबार. भगवान ने क्या उसका रूप दिया? कदाच बहु ज निरांते शांति बैठा बैठा ड्रॉइंग करी उसने, અને એકદમ અપ ટુ ડેટ સાહેબ સ્વર્ગ કી અપ્સરાઓ ફીકી પડે એવું તમને રૂપ મળ્યું હોય. અને કોઈ જ વ્યક્તિ જોવે જેના પોતાના રૂપના ઠેકાણા નહીં અને જોવે કે આહા, હવે બેયનો કોન્ટ્રાસ્ટ તમે કરો તો શું થાય? અને એ વ્યક્તિ જોવે ને એના મનમાં થાય અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ગોડ ઇટ ઇઝ નોટ ફેર. એક બાજુ સાવ દુષ્કાળ અને આ બાજુ આટલો બધો કૃપાનો વરસાદ. અને એના મનમાં ઈર્ષ્યા થાય કોઈના રૂપ જોઈને. કોઈનું રૂપ જોઈને જો તમને ઈર્ષ્યા થાય, કોઈનું ગળું સારું હોય ગાવાનું અને તમારો અવાજ કાગડાથી નીચે ઉતરતો હોય અને એનો અવાજ તમે સાંભળીને ઈર્ષ્યા થાય. એક બહેન એવી હોય ઘરમાં, સાહેબ આખો દિવસ કોઈ કામ ના કરતી હોય, આરામથી સોફા ઉપર બેઠી હોય અને ફોન લઈને વાત કરતી હોય અને આખા ઘરમાં બધા જ લોકો એનું સન્માન કરતા હોય અને તમે કામ કરી કરીને તૂટી જાઓ, કોઈ તમારો રિસ્પેક્ટ ના કરે. આવું કેમ બને? અને તમારા મનમાં થાય કે આ ઇઝ નોટ ફેર. એનું કારણ એ છે કે બીજાનું રૂપ જોઈને, બીજાનો સારો અવાજ જોઈને, બીજાનું સારું શરીર જોઈને જો તમારા મનમાં દુર્ભાવ આવ્યો હોય, એના પ્રત્યે ઈર્ષ્યા જાગી હોય, અભાવ આવ્યો હોય, તો જૈન ધર્મ કહે છે આપને કર્મ બાંધ लिया. कौन सा? कौन सा? अगले जन्म में कुरूप शरीर का निमंत्रण दे दिया. હવે આગલા જન્મમાં તમારો જન્મ થાય એટલે આમ બધું જ બરાબર હોય.
આખું શરીર બધું પરફેક્ટ, પણ 2 દાંત રાક્ષસની જેમ બહાર. લો કરો કામ. તમને એમ થાય કે ભગવાને આટલું બધું ઠીકઠાક ગોઠવ્યું હતા, દાંતે સેટ કર્યું હતું, 2 દાંત કેમ ભગવાને આમ બહાર લટકતા મૂક્યા? કારણ કે તમે કોઈક જન્મમાં કોઈનું રૂપ જોઈને ઈર્ષ્યા કરી છે, અદેખાઈ કરી છે, નફરત કરી છે. આ જન્મમાં એનો બદલો. એટલે આપણે ત્યાં કહેવાય છે બધું અહીંનું અહીં જ છે. તમે જે ભાવ કરો છો, તમારી આજુબાજુને તમે ચીટ કરી શકો, જેના પ્રત્યે ભાવ કરો છો એને તમે ચીટ કરી શકો, પણ કર્મને તમે ચીટ નહીં કરી શકો. સાવધાન. આયુષ્ય नाम कर. एक और जरा इशारा कर लो. घना लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की एवी हैबिट होती है, ऐसे संस्कार होते हैं, कोई ना काम में डिस्टर्ब ज उभू करे. घना लोग आ टाइप की पर्सनालिटी हो, कईक बराबर चालतुं होय ने त्यां डक्को ज करे, त्यां वाधा ज काढे. घना लोग संघ में कोई जमणवारो जमवा जाए અને ફર્સ્ટ ક્લાસ પૂરી બનાવી તો કે રોટલી નથી બનાવી, એટલે ખાલી પૂરી રોટલીની માંડીને બેઠો છે. અને રોટલી બનાવી હોય તો કે આટલા બધા 500 જમવા આવે તોય તમને રોટલી બનાવવાનું પોસાય? અમને પોસાય, તું ખાઈ લે. પણ પૂરી બનાવી જોઈએ ને. આ પૂરી તું જ્યારે જમણવાર કરે ને ત્યારે કરજે, અત્યારે ખાઈ લે. વાંધા જ કાઢવા હોય બીજાના પ્લાનમાં, બીજાના આયોજનમાં, બીજાની સ્ટ્રેટેજીમાં ડિસ્ટર્બ જ કરે. આવા અમુક લોકો હોય છે. અમુક લોકો એ ટાઈપ ના જ હોય, તમે બદલી જ ન શકો. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ 3 ભેગા થાય તો ન બદલી શકે. અમુક પર્સનાલિટી. અને આવી વ્યક્તિનું જૈન શાસ્ત્ર કહે છે અંતરાય કર્મ બંધાય છે. એ કર્મ છે અંતરાય. અને જે વ્યક્તિના જીવનમાં એના પ્લાન ફેલ જતા હોય, એના આયોજનો ફેલ જતા હોય, એના જે કંઈ એજન્ડા બનાવ્યા હોય એ એજન્ડા પર પાણી ફરી જતું હોય, યાદ રાખજો કોઈક ને કોઈક જન્મમાં તમે કોઈના એજન્ડા ફેલ કર્યા છે. નહીં તો બને જ નહીં. હું પર્સનલી મારી અંગત વાતો કેટલી બધી તમારી સાથે શેર કરું છું. હું અંગત મારી વાત શેર કરું તો કહી શકું મને આ કર્મમાં એટલી બધી શ્રદ્ધા છે જેનો કોઈ પાર નથી. અને એના કારણે અંધારામાં પણ ખરાબ કર્મ કરતા અટકી જાઉં છું. મને લોકોમાં એટલી શ્રદ્ધા નથી જેટલી મારા કર્મમાં છે. કેમ કે કર્મ મને નહીં છોડે. લોક તો ઉદારતાથી માફ પણ કરી દેશે, કર્મ માફ નહીં. એટલે અંતરાય કર્મ. કેટલા કર્મ થયા? જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય સાથે જ ચાલે છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય કર્મ થઈ ગયું. મોહનીય, હા એક મોહનીય. જ્યાં જ્યાં તમારું અટેચમેન્ટ, ત્યાં ત્યાં મોહનીય કર્મ તમે સ્ટ્રોંગ કરો છો. જ્યાં જ્યાં અટેચમેન્ટ. તમારો છોકરો સિંગાપુર થી અમેરિકા ભણવા ગયો, તમારી દીકરી અમેરિકા ભણવા ગઈ, દરેક અઠવાડિયે ફોન કરી માં દીકરી સામે રડે, બેટા આઈ મિસ યુ, બેટા આઈ મિસ યુ, તું ક્યારે આવીશ પાછી, બેટા તારા વગર નથી પાવતું. દીકરી કે માં તેજ મને મોકલી છે આશીર્વાદ આપ. એ બધું બરાબર, તું ત્યાં જ ભણ. પેલી દીકરી કે બેટા કે મમ્મી આવી જાવ, ના 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 તારે ભણ, પણ મને મિસ થાય છે. આ બહુ જ અંદરથી કોઈ વ્યક્તિ હાજર ન હોય અને તમે અંદરથી ડિસ્ટર્બ રહો, એના કારણે જૈન ધર્મ કહે છે તમે મોહનીય કર્મ બાંધી લીધું. આવી રીતે 8 કર્મ છે સાહેબ. તો मैं व्याख्या करने चल पड़ा. जैसा भाव वैसा शुभ अशुभ कर्म हम बांधते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहना. आज की चर्चा में सारे मुद्दे समण सूत्र में महावीर स्वामी एकदम क्लियर करते हैं. दूसरा सूत्र कहता है प्रमादी मनुष्य. प्रमादी मनुष्य का मतलब है जिसको स्पिरिचुअल वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको स्पिरिचुअल अवेयरनेस नहीं है, उसको कहते हैं जैन धर्म में प्रमादी. प्रमादी मनुष्य शरीर और वाणी से मत बनता है,
यानी शरीर की गुमान में फंसता है और वाणी का अपनी स्वतंत्रता समझते हुए मन भावे ऐसा उपयोग करता है, उसको जैन शास्त्र में कहा है मत्त बनता है। मत्त, MATT, मत्त। अपनी स्वतंत्रता समझकर, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपने शरीर से जैसा मर्जी आए ऐसा व्यवहार करेगा और अपनी वाणी को जैसा मन भावे वैसा उच्चारित करेगा, तो शरीर और वाणी से मत्त बनता है। धन में और स्त्रियों में गृद्ध बनता है। गृद्ध मतलब अटैच, आसक्त, उसको पकड़ लेता है। धन को और स्त्रियों के पीछे आदमी का मन विचलित हो जाता है, उसमें चिपक जाता है, आसक्ति हो जाती है। एक एग्जांपल दूं मैं, आपने कभी बंदर, बंदर, मंकी, एक बंदर पर प्रयोग किया गया कि एक मटका है, उस मटके में चने हैं, क्योंकि बंदर को चने बहुत बात है, मटके में चने हैं और उस मटके का मुंह इतना छोटा है कि हाथ अंदर बाहर जा सकता है, मुट्ठी अंदर बाहर नहीं जा सकता, ऐसा उसका मुंह है। अब हाथ डालो तो चला जाएगा। तो क्या हुआ, उस बंदर ने देखा कि मटके में चने पड़े हैं, बंदर आया, मटके में हाथ डाला, मुंह इतना छोटा था लेकिन हाथ अंदर चला गया। अब उसने मुट्ठी भरी, अब मुट्ठी भरी तो उसका क्षेत्रफल लंबा हो गया। अब बाहर निकालने जाते हैं तो मुट्ठी में चने बाहर आते नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पकड़ किसको बोलते हैं? पकड़, अटैचमेंट। अब वो बंदर बड़ा पजल में पड़ा, क्योंकि वो क्वालिफाइड था नहीं, उसने MA की डिग्री ली नहीं थी, वो मास्टर था नहीं, उसने BCom या BSc किया नहीं था। तो हाथ अंदर तो डाल दिया, मुट्ठी में चने भी भर लिए, अब बाहर निकालने जाते हैं तो जो मुंह है ना इतना संकरा है कि मुट्ठी बाहर निकलती नहीं। अब मुट्ठी खोल दे तो चने हाथ में नहीं आए, और चने बाहर निकालने की कोशिश करे तो मुट्ठी के कारण चने निकले नहीं, करे क्या? इसी का नाम आसक्ति है। मैं करना चाहता हूं फिर भी मैं कर नहीं पाता हूं, मैं पकड़ना चाहता हूं फिर भी पकड़ना मेरे हाथ से बाहर हो जाता है। ये धन की और स्त्री में जो आदमी लीन हो जाता है, गृद्ध हो जाता है, चिपक जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान महावीर कहते हैं कैसा है? 4 चीजें बताइए। शरीर का दुरुपयोग, वाणी का दुरुपयोग, धन के पीछे पागल, स्त्रियों के पीछे पागल, या स्त्री पुरुष के पीछे, ले लो दोनों। तो उससे होता क्या है? भगवान महावीर कहते हैं जैसे एक अलसिया होता है, अलसिया एक क्रीचर है, गुजराती में अड़स्यू कहवाय, अड़स्यू। सिंगापुर वाला अड़सिया ना समझे? अर्थवॉर्म, वेरी गुड। इंग्लिश मीडियम में छोकर अर्थवॉर्म, अंग्रेजी में कहवाय अर्थवॉर्म। वो जो ये जो अड़स्यू हो, ये अड़स्यू शू करे खबर? अड़सिया ने तमे जोजो, वरसादनी ऋतुमां અહીંયા તો મારે ચારે બાજુ છે અત્યારે, એ અળસિયું શું કરે? આ બાજુ મોઢાથી અને આ બાજુ શરીરથી બે તરફથી માટીનો સંચય કરે। મોઢાથી પણ માટી ખેંચે અને પાછળ પૂંછથી પણ માટી ખેંચે, બે બાજુ માટી ખેંચે। ભગવાન મહાવીર કહે છે કે એવી જ રીતે જે વ્યક્તિ આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે એ વ્યક્તિ અળસિયાની જેમ एक बाजू रागना मोढ़ाथी, बीजी बाजू पाछळ द्वेषना मोढ़ाथी, बे बाजू कर्मनो संचय करे छे। जो समझवू आटलू अघरू होय तो साहेब समजावू केटलू अघरू? તમે તો આરામથી બેસીને સાંભળી રહ્યા છો। સમજવું જ જો આટલું અઘરું છે તો વિચાર કરો સાહેબ। અળસિયું જેમ બે બાજુથી માટીનો સંચય કરે એમ
એક અજ્ઞાની મનુષ્ય, ના સમજ મનુષ્ય એક બાજુ રાગના મોઢાથી અને બીજી બાજુ દ્વેષની પૂંછથી બે બાજુ કર્મનો સંચય છે. રાગ યાને ગમતી વસ્તુ, ગમતી વ્યક્તિ, દ્વેષ યાને જે વ્યક્તિ મને, જે વસ્તુ મને નફરત કરે છે, નથી ગમતી, આ બંને વસ્તુથી મોઢાથી અને પૂંછથી માણસ કર્મનો સંચય કરે છે. આજથી કોશિશ કરજો, આપણે બધાએ કોશિશ કરીએ, હું એ તમારા ભેગો જ છું. આપણે કોશિશ કરીએ, બહુ સારી વસ્તુ જોઈને ઓવર એક્સાઇટ ના થઈ જઈએ, બહુ સારી વ્યક્તિને મળીને ઓવર એક્સાઇટ ન થઈ જઈએ. બહુ ખરાબ વ્યક્તિ પણ કદાચ જીવનમાં આવી જાય, ખરાબ વસ્તુનો પણ ક્યારેક સંયોગ થઈ જાય, તો બહુ નફરત અને ઘૃણા ન કરીએ, બંનેમાં બેલેન્સ રહેવાની કોશિશ કરીએ. જૈન ધર્મમાં એને જ સમતા કીધું છે, એને જ સામાયિક. 59 का श्लोक कहता है, ज्ञाति मित्र वर्ग पुत्र एवं તમારા મિત્રો, બંધુ, તમારા રિલેટિવ, નિયરેસ્ટ એન્ડ ડિયરેસ્ટ પીપલ વગેરે તમારા દુઃખમાં ભાગ લઈ શકતા નથી, તમારા કર્મોમાં ભાગીદાર બનતા નથી. કેમ કે જે કર્મ કરે છે એને એકલાને જ દુઃખ ભોગવવું પડે છે. કેમ કે કર્મ करने वाले के पीछे फॉलो करता है. 1000 गाय હોય ને, 1000 ગાય, 1000 ગાયો છે અને વાછડું એક જ છે, પણ એક વાછડું જ્યારે 1000 ગાયને જોવે ત્યારે એની માને શોધી લે કે નહીં? આ બધા ખેડૂતના દીકરાઓ બેઠા શું કરે? એક વાછડું 1000 ગાય, 1000 ગાયમાં કેટલી બધી ગાયોને તો એને જોઈ પણ નથી, પણ 1000 ગાયમાં એ વાછડું એની માને શોધી લેશે. એમ કર્મ એક એવું વાછડું છે કે કર્મ કરનારને શોધી. કર્મ તમને બધાની વચ્ચે આટલા લોકો 5 લાખ લોકો બેઠા હોય, પણ કર્મને સમજી જાય કે આ વ્યક્તિએ કર્મ કર્યું છે, એને બદલો આપો. તમારું કર્મ તમારા બાજુવાળાને ના આપે કઈ. અત્યાર સુધી કર્મની અદાલતમાં કરપ્શન ઘૂસ્યું નથી. અત્યાર સુધી બધે જ કરપ્શન આવી ગયું છે. કર્મની અદાલતમાં અત્યારે અમીર હોય કે ગરીબ હોય, જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, તપસ્વી હોય કે ખાઉદ્રો હોય, કર્મની દુનિયામાં ક્યાંય કરપ્શન નથી. એટલું સારું છે કે કમ સે કમ માણસ કર્મથી તો સાવધાન રહે. તમે જે કર્મ બાંધો છો તમારા બાળકો માટે, તમારા પરિવાર માટે, તમારા મિત્રો માટે, તમારું કર્મ કોઈ ભોગવવા નહીં આવે. આપણે જો એક પેલી સ્ટોરી આવે છે ને, પેલા કોની, વાલિયા લુટારાની. હા, આપણે નાના હતા ત્યારે બહુ આ સ્ટોરી સાંભળી હતી, વાલિયા લુટારાની, જે વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા અને રામાયણની અદ્ભુત રચના કરી છે. એ વાલિયો લૂંટેરો જ્યાં જોવે ત્યાં લોકોને લૂંટ્યા જ કરે, લૂંટ્યા જ કરે, લૂંટ્યા જ કરે. ખિસ્સા કાતરું ફીકો પડે એની સામે. જે હોય આખું ને આખું લૂંટી લે, ખાલી ખિસ્સું ના લૂંટે, આખું ને આખું માણસને. આવો વાલિયો લૂંટેરો એકવાર નારદજીને ભેટો થઈ ગયો. હા, નચિકેતા સાહેબ, નારદજી એકવાર ભેટો થઈ ગયો. નારદજીએ કીધું કે અલ્યા તું શું કરે છે? અલ્યા શું કરે છે એટલે મારા ઘરનું પાલન પોષણ કરું છું, ઘરમાં છોકરા, બૈરા, પોતરા, એના માટે આ બધું પાપ કરું છું. अच्छी बात है, बहुत अच्छा, कर बेटा. लेकिन तने एक बात का तुझे पता है कि ये जितना तू पाप कर रहा है अपने परिवार के लिए, ये पाप तू अकेला भोगेगा कि सब थोड़ा थोड़ा हिस्सा बटाएंगे? वालिया लुटारा ने कहा कि वो तो हिस्सा बटाएंगे ना, उनके लिए कर रहा हूं, तो वो तो हमारी पूरी बिजनेस डील है, 10% सब कर्म भोगेंगे. नारद ने कहा अंधेरे में मत रहना,
पहले पूछ के आ जा, कंफर्म कर ले, फिर पाप शुरू कर, कंफर्म कर। उसने कहा कंफर्म? हाँ तुम बड़े होशियार हो नारद, इस बहाने तुमको भाग के खड़ा होना है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे नारद ने कहा मुझे झाड़ के ऊपर रस्सी से बांध ले और जा पूछ के आ जा। उसको रस्सी से बांध कर बराबर नारद जी को और वालिया पूछने गया अपने घर पर कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात पाप कर रहा हूं, तो कर्म में तुम भी बंटवारा थोड़ा भोगोगे ना। पत्नी कीधु तमने कोने डोडाया कर्या था लग्न करवाने मारी साथे? आपणे कर्म तमारू हमें कहीं भोगवाना नहीं। छोकराए कीधु के तमने कोने जवाबदारी आपी अमने उछेरवानी मोटा करवानी? अमने पूछવું જોઈએ संसाરમાં લાવતા પહેલા। अब आपने मुझे ये सब कर दिया, हम कर्म नहीं भोगेंगे, आपके कर्म तुम जानो, हम भोगने वाले नहीं। सबने मना कर दिया। वो आए वापिस वालिया लुटेरा और नारद जी को कहा कि वो तो कोई भोगने को तैयार नहीं, तो वो तो मैं पहले कह रहा था, अब सोच लो। उसने कहा मुझे क्षमा करो। बस साहिब, कहानी कहती है कि वालिया लुटेरा नारद की रस्सी को खोल रहा है। जैसे जैसे उसकी रस्सी खुलती जाती है और खुद की रस्सी नारद के चक्कर में बंधती जाती है। नारद के चक्कर में पड़ गए और नारद जी को कहा आप मुझे दीक्षित करो, आज मेरी आंख खुल गई, कोई कर्म का फल मेरे साथ में भोगने वाला। और वो वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन गया, अद्भुत रामायण की रचना की साहब। वाल्मीकि रामायण अद्भुत ग्रंथ, कोई भोगने वाला नहीं। जैसे कोई व्यक्ति, गाथा नंबर 60 कहती है, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष पर चढ़ते समय स्वतंत्र है, चढ़ना नहीं चढ़ना, कैसे चढ़ना, कहां से चढ़ना, धीमे धीमे चढ़ना, जंप मारना, एक व्यक्ति को वृक्ष पे चढ़ना है तो वो स्वतंत्र है। लेकिन चढ़ जाने के बाद वृक्ष से जब नीचे उतरना है तो वो स्वतंत्र नहीं है। सिंगापुर में आटला लोग सांभी रहा छो, प्रयोग करो करूं, તમારી इजाजत है प्रयोग करो। एक आदमी कुछ चीजें करने में स्वतंत्र है, सारी चीजें करने में स्वतंत्र है। एग्जाम्पल दिया है समण सूक्तम में, झाड़ पर चढ़ना है तुम स्वतंत्र हो, अब नीचे उतरने का कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें उतरना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में तुम्हें पड़ना ही। चढ़ने में तुम्हारा चॉइस था, कैसे चढ़ना, कितना चढ़ना, कितनी गति, अब उतरने में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। एक प्रयोग करूं, सिंगापुर वाले मुझे दिख रहे हैं, भाविन भाई जी उभा था तो भाविन भाई, हाँ उभा थई जाओ। કેટલા આરામથી આમ ચેર ઉપર બેસી મસ્તીથી સાંભળે છે, એકાગ્ર ચિત્ત થઈ ગયા। ક્યાં ગયા ભાઈ? હા ઉભા થઈ ગયા ને। જો ઝૂમમાં આવા પ્રયોગ થાય, આવા તો તમે ફેસ ટુ ફેસ સાંભળો ને તોય ન થાય। હા જો આ ટેકનોલોજીનો ચમત્કાર। થેન્ક યુ ભાવિન ભાઈ, તમને તકલીફ આપી। હવે તમે તમારો રાઈટ પગ ઊંચો કરો, રાઈટ પગ ઊંચો કરો, રાઈટ પગ ઊંચો કરો, ખાલી કર્યો ને? હા થેન્ક યુ भाविन भाई, आराम थी धड़ दिन मारो ऑर्डर थी राइट पूछो, बिकॉज ये स्वतंत्र है। हमें मैं भाविन भाई को बोलता हूँ वो आज्ञा कंटिन्यू रखना, अब लेफ्ट ऊंचा करो। बहुत ताकतवर हो ना, बहुत हिम्मतवर हो ना, अब तो अरे थोड़ा 3 सेकंड के लिए करो ना, इतनी आज्ञा तो पालो 3 सेकंड, अरे 1 सेकंड के लिए करो। स्माइलिंग करे ले, हम स्माइलिंग करा। व्यक्ति एक पांव ऊंचा करने में स्वतंत्र है, दूसरा पांव ऊंचा करने में स्वतंत्र नहीं है। विराजी साहब, भाविन भाई थैंक यू। भाविन भाई चाहते तो मैं चॉइस देता कि राइट करना हो तो राइट, लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट, चॉइस है, कोई भी पांव ऊंचा कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा दूसरा पांव करो, वो नहीं कर सकते। समण सूक्तम कहते हैं तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। किसी का खून कर सकते हो, किसी को गोली मार सकते हो, झूठ बोल सकते हो, हत्या कर सकते हो, हिंसा कर सकते हो, परिग्रह कर सकते हो, तुम कर्म करने में स्वतंत्र। अधूरा वाक्य पूरा करो मित्रों। अब
किया हुआ कर्म तुम स्वतंत्रता से तुमने किया, अपनी फ्रीडम के साथ। अब कर्म भोगने में तुम स्वतंत्र नहीं हो। जैसे दूसरा पांव खड़ा नहीं हो सकता है, वैसे किया हुआ कर्म अब भोगने में हमारी फ्रीडम नहीं। कर्म कर लिया, इनविटेशन पहुंच गया, अब वो जो इनविटेशन आपने भेजा वो वापिस आएगा। तपोवन वाले इनविटेशन भेजा वो वापिस आज नहीं तो कल आएगा। ये तो हिंदुस्तानी टपाली है भाई, थोड़ी देर भी लगेगी। ये तो इंडियन पोस्ट सिस्टम है, आज डाक डालो 2 महीने में भी आएगी, लेकिन आएगी, डाक आएगी। मुझे एक बात याद आई, एक बार ऐसा हुआ, एक जोधाबाई थी, जोधाबाई और एक बीरबल थे और अकबर थे, तीनों थे। अकबर की रानी का नाम जोधाबाई और अकबर के वहां जो 14 रत्न थे उसमें एक रत्न का नाम बीरबल। वो तीनों कहीं जा रहे थे, तीनों जा रहे थे तो आगे जोधाबाई थी, संकरी जगह आई, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, लो हिंदुस्तान। तो आगे जोधाबाई थी, बीच में बीरबल और पीछे अकबर रह गए। क्रम बराबर याद रखना, आगे जोधाबाई, बीच में बीरबल, पीछे अकबर, तीनों जा रहे थे। लंबा रास्ता था। अकबर का स्वभाव जरा फनी, जरा मजाकी स्वभाव। अकबर ने सोचा इतना लंबा टाइम पास कैसे करूंगा, मजाक सूझी और अकबर ने हिम्मत करके बीरबल की कमर में जोर थी चूंटियों पर। टाइम पास करो तो जब छोकरा ना करे, हम अपने रमता जोर से चूंटिया भरा। बीरबल ने देखा अचानक, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ये अटैक कहां से। पीछे देखा तो अकबर, जहां अपना जिसके वहां नौकरी करे। सोचा कि अब अकबर के ऊपर तो प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि मेरी नौकरी जाए। आगे जा रही थी जोधाबाई, सोचा कि ट्राई करने दो, देखा जाएगा, पढ़ सेवा देवा से। उसने जोधाबाई की कमर में जोर से चूंटिया। जोधाबाई ने देखा, ओ हो कौन है। अकबर होते तो जरा विनम्रता से पेश आते। देखा पीछे बीरबल और आंख बबूला हुई जोधाबाई। जोधाबाई ने कहा, तेरी हिम्मत ऐसी, मुझे चूंटिया भरा, मैं महारानी अकबर की पत्नी, आओ देखा न ताब। जोधाबाई ने जोर से बीरबल के गाल में तमाचा, तमाचा मारा, 5 आंगड़ियों साहिब प्रिंट थी। अब बीरबल ने देखा कि भाई आगे से आया है, अब आगे तो ट्राई कर नहीं सकते, आया आगे से है, अब लेट्स ट्राई टू डू बिहाइंड। और पीछे आ रहा था अकबर, आओ देखा न ताव, नौकरी जाए तो जाए। जोर से उसने अकबर के गाल में तमाचा मारा। अकबर ने कहा, तू मेरे वहां नौकरी करता, बहाने की नहीं मुझे तमाचा, तो तमाचा नहीं मारा है। अरे बेवकूफ, एक तो तमाचा मार रहा है इतने उजाले में, दोपहर को 12 बजे, और तू कहता मुझे पूछ रहा है कि तमाचा क्यों तमाचा मारा। बीरबल ने कहा, जहां अपना तमाचा नहीं मारा है तो क्या, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया। आपने चिट्ठी भेजी थी ना, ये उसका जवाब है। जैन धर्म का कर्म सिद्धांत कहता है, चूंटिए के रूप में आप कर्म करोगे, चांटे के रूप में रिजल्ट खाने को तैयार है। मल्टीप्लाई, रश्मि बहन सामड़ी रिया से ध्यान, कर्म मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई, एक बीज बोवो तो एक मैंगो झाड़ पर नहीं होता है, मल्टीप्लाई। छोटा कर्म किया, मल्टीपल उसका रिजल्ट आपको फल। तो यह है कर्म का सिद्धांत। एक पांव ऊंचा करने में स्वतंत्र हो, दूसरा पांव नहीं। कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल भोगने में नहीं। कर्म करना पहला पांव है, फल भोगना दूसरा पांव है। इट इज नॉट इन योर हैंड टू
टू फेस द कर्म, वो भोगना ही पड़ेगा, नो चॉइस। अरे साहब, अज्ञान में, अनजान में, आसक्ति में, क्रोध में, जानते हुए या बिना जाने कोई भी कर्म किया, दिन में या अंधेरे में, कर्म भोगना। और मजेदार बात यह है साहब कि जब आदमी कर्म करता है ना, तब बड़ा अच्छा लगता है। भाविन भाई एक पग ऊपर કર્યો ને એટલા બધા સ્માइलिंग करता बहुत सारू लागे। जब आदमी कर्म करता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कर्म का फल भोगने की बारी आती है, आंख में खून के आंसू आते हैं। इसीलिए बहुत सावधान रहना। जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म तुमको कहता है अनजान में भी कर्म न हो जाए, ध्यान रखो। अजानता पण कर्म ना थई जाए, ध्यान राख। तो याद करो ऋषभदेव ने राजा हता त्यारे बैल को कहा कि उसके मुंह में छिंका लगा दो ताकि बैल अनाज खाएगा नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। और वो योगलिक लोगों की बुद्धि थी नहीं, राजा का आदेश, मुंह में छिंका डाल दिया, बांध दिया बैलों के। अपनी बुद्धि नहीं लगाते थे, राजा के ऑर्डर से चलते, छिंका लगा दिया। अब छिंका लगाने के बाद बैल खेत में काम करते हैं, फार्म में काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ खाते नहीं, तो बड़ा फार्मर खुश। लेकिन जैसे ही 5 घंटा हुआ, बैलों को प्यास लगी, पानी पिलाने के लिए ले गए होज में, बैल पानी नहीं पीते, कहां से पिएंगे, ऑलरेडी लॉक कर दिया है। बैल पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन वो सोच नहीं रहे कि बैल पानी क्यों नहीं पी रहे। आए ऋषभ राजा के पास कि बैल तो पानी नहीं पीते, नाराज हो गए कि आज 24 उपवास है कि आज मामला क्या है, पानी नहीं पी रहे। तब ऋषभ देव ने उपयोग लगाया और कहा कि अरे वो छिंका निकाला कि नहीं। उसने कहा हम क्या करें, आपने ऑर्डर ही नहीं दिया था, आपको पहले कह देना चाहिए एक साथ कि ना खेती बाड़ी हो जाए बाद में वो निकाल लेना, आपने क्यों ऑर्डर नहीं किया। अनजान में ऋषभ देव ने 12 घंटे तक बैल को पानी पीने में अंतराय डाला। बैल 12 घंटे तक ऋषभ की आज्ञा से पानी नहीं पी सकता। ऋषभ राजा ने जब दीक्षा ली और ऋषभ देव बने, गोचरी जाते हैं, 12 महीने तक भोजन नहीं मिला। लोग जाते, ऋषभ देव गोचरी जाते, लोग जानते नहीं साधु को क्या बहराना, क्योंकि पहले साधु कोई हाथी की ऑफर करते, कोई घोड़े की करते, कोई सिंहासन की करते, खाने की कोई ऑफर नहीं करते 12 महीने तक। इसलिए अनजान में भी कर्म न हो जाए, सावधान रहे। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर तो मिथ्यात्व का लक्षण है, सावधानी जरूर। जैसे कि कभी कभी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कभी कभी एक धनिक बलवान होता है तो कभी कभी एक कर्जदार बलवान होता है। क्यारेक धनवान बहुत बहादुर होए, बड़वान होए, अने क्यारेक क्यारेक जिस पर कर्जा चढ़ गया है वो बलवान होता है। अब समझ रहे मेरे हिंदी शब्द, कर्जा चढ़ गया यानी मैंने अगर आपसे उधारी ली है तो कभी कभी मैं बलवान और कभी कभी मुझे जिसने पैसे दिए वो बलवान। पैसा देते समय देने वाला बलवान, लेकिन मैंने पैसा उधारा ले लिया, अब ब्याज चुकाने नहीं चुकाने में मैं बलवान। मानस ना चुकावे, मानस डिले करे, मानस बाना काढ़े, मानस आम करे। उसी तरह जैन धर्म कहता है कि कभी कभी कर्म करने वाला बलवान होता है और कभी कभी कर्म भोगने वाला बलवान होता है। डिपेंड, कभी कभी कर्म करने वाला बलवान, करते समय कर्म करने वाला बलवान, बराबर। लेकिन कर्म भोगते समय कर्म बलवान है
भोगने वाला बलवान नहीं। 62 गाथा कहती है सामान्य की अपेक्षा कर्म एक ही है, भाव कर्म। सामान्य स्टेटमेंट के अनुसार कर्म एक ही है, भाव कर्म, किंतु द्रव्य एवं भाव की अपेक्षा से कर्म दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म। लगभग 3 मिनट में बात पूरी करूं। एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म, ये दो कर्म समझ लो। भाव कर्म मेरे अंदर है, द्रव्य कर्म मेरे से बाहर। भाव कर्म मेरी चेतना से जुड़े हुए हैं, द्रव्य कर्म मैटर पुद्गल से जुड़े हुए। और वो जो द्रव्य कर्म है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश मंडल में, पूरे यूनिवर्स में भरे पड़े। द्रव्य कर्म खिंचोखिंच कंजस्टेड तरह भरे पड़े। वो द्रव्य कर्म, वो मैटर, वो मटेरियल पार्टिकल जो अजीब है, जो मैं कह रहा था अजीब कर्म, वो कर्म पार्टिकल मेरा अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बैठा हूं ध्यान में, द्रव्य कर्म मेरी चारों तरफ है, वो द्रव्य कर्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अभी दुर्भाव नहीं कर रहा हूं। मेरे अंदर के भाव द्रव्य कर्म को आमंत्रित करते हैं। कैसे समझाऊं? जैसे एक मैग्नेट हो, मान लीजिए मैग्नेट है, और यहां पर आप कोई भी लोखंड की चीज रखो तो मैग्नेट के रेडिएशन के कारण वो जो निडल है या कोई भी लोखंड की चीज है यहाँ चिपक जाए। उसी तरह ये मैग्नेट यानी भाव, बाहर की चीज वहां चिपक जाए, वो द्रव्य कर्म। अगर आदमी न शुभ प्रवृत्ति करे, न शुभ करे, न राग, न द्वेष, न अच्छा न बुरा, वीतराग भाव, कोई कर्म की ताकत नहीं है कि मेरी आत्मा में आ सके। लेकिन जैसे ही मैंने राग किया, द्वेष किया, दुर्भाव किया, अभाव किया, कर्म आना चालू। तो आखो दिवस कर्म बंधाय के नहीं? आखो दिवस तमारू मन काम करते हुए कर्म बंधाय। रात ना તમે હુઈ જાઓ ત્યારે कर्म बंधाय के नहीं? घना नियम है कि रात ना हुई जाए त्यार कर्म न बंध। रात को नींद में भी कर्म बंधन चालू रहता है, क्योंकि रात को नींद में भी हमारे भाव अंदर में उथल पाथल करते। ये जैन धर्म है। नींद में भी कर्म बंधते हैं। अगर नींद में कर्म नहीं बंधे तो कुंभकर्ण को सबसे कम कर्म बंधे हो, क्योंकि तो 6 महीना सोता रहता था। सबको बंधता है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म समझ में आ गया? भाव कर्म इज द रूट टू इनवाइट द द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म जो है वो जड़ है, भाव कर्म है वो चेतन। राग द्वेष भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म को इनवाइट करता है और आत्मा के साथ द्रव्य कर्म चिपक जाता है। सिक्सटी 63 की गाथा कहती है, इंद्रिय आदि विषयों पर विजय कर जो उपयोगमय ज्ञान दर्शनमय आत्मा का ध्यान करता है, जिसकी मैं बात कर रहा था, ज्ञाता दृष्टा भाव, मात्र जानो मात्र देखो। अगर साक्षी भाव से मैं आत्मा का ध्यान करता हूं तो जैन धर्म का समण सुत्तम कहता है उसे कर्म बंधन नहीं होता है। इसीलिए द्रव्य कर्म उसके पीछे कैसे जा सकेगा? ध्यान और निर्विकल्प स्थिति में रहने वाले को, साक्षी में रहने वाले को, दृष्टा भाव में रहने वाले को कर्म बंधन नहीं।
लोग प्रश्न करते हैं कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद तो महावीर स्वामी ने 30 साल तक प्रवचन दिए। केवल ज्ञान के बाद महावीर स्वामी ने 30 साल तक प्रवचन दिया। प्रवचन तो शुभ प्रवृत्ति है। महावीर स्वामी को कर्म बंधन हुआ कि नहीं? अगर महावीर स्वामी को कर्म बंधन हुआ तो महावीर स्वामी का मोक्ष उस जन्म में हो ही नहीं सकता। 30 साल तक महावीर ने प्रवचन दिया, फिर भी एक भी अच्छा या बुरा कर्म नहीं। कारण कि महावीर स्वामी प्रवचन देने के कर्ता नहीं थे, दृष्टा। प्रवचन के अंदर वो इंडल्ज नहीं होते थे, वो भोक्ता नहीं थे, वो ज्ञाता और दृष्टा थे, मात्र साक्षी। इसीलिए दिगंबर परंपरा कहती है महावीर स्वामी ने प्रवचन दिया नहीं, महावीर स्वामी में से प्रवचन निकला। उसमें उसका एफर्ट नहीं था, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस कर्म होता है वह कर्म का बंधन। तो ये 8 प्रकार के हमारे कर्म की चर्चा। बस इस कर्म के मैं नाम बता दूं। ज्ञानावरणीय कर्म, अब मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है। दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, कृपा करना थोड़ी देर, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय। आत्मा के गुणों को ढकने वाला ज्ञानावरणीय कर्म, आत्मा के दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शनावरणीय कर्म, और शरीर में सुख की अनुभूति कराने वाला साता वेदनीय, दुख की अनुभूति कराने वाला साता वेदनीय, हमारे आत्मा के आनंद गुण को डिस्टर्ब करने वाला मोहनीय कर्म। समय नहीं है साहब, नहीं तो आधा घंटा और मुझे चाहिए। डोंट वरी, नहीं लूंगा। जहां जहां मोह, वहां वहां आनंद को खतरा। जितना जितना मोह ज्यादा, उतना उतना आनंद कम। हमारे संसार के लोग उतना उल्टा मानते, जितना जितना अटैचमेंट ज्यादा, उतनी उतनी खुशी ज्यादा। खाक, जितना जितना अटैचमेंट ज्यादा, वो अटैचमेंट सुख नहीं लाएगा, वो अटैचमेंट दुख लाएगा। घर का ज्यादा अटैचमेंट होगा, दुख आएगा। बच्चों पर ज्यादा अटैचमेंट होगा, दुख आएगा। आज का विज्ञान तो यहां तक कहता है कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक सीक्रेट स्टेटमेंट सुन लेना। आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे पर ज्यादा मोह है और दूसरे बच्चे पर आप बिंदास्त है। आज का विज्ञान कहता है जिस पर आपका मोह ज्यादा है ना, वो बच्चा सबसे कमजोर और सबसे बीमार रहेगा। घर में प्रयोग करके देख लेना, और किसी के घर में हो तो मुझे फोन करके कहना, ताकि मैं कल छाती ठोक के कह सकूं। राजकोट का तो मेरा अनुभव, एक घर में मैं गया तो हमारी नानी दीकरी बहु वीक છે, बहु बीमार पड़े છે, એટલી બધી એલર્જી છે ને કઈ ખાઈ જ ન શકે। આને કઈ એને નહીં કહું, પેલા તને કહું, તું ઊભી રહે, આને કઈ થયું લે। અને અમારી બીજી છોકરી છે ને, એને કોઈ ચિંતા નહીં, એ ગમે તે ખાય પીવે, એને કાંઈ વાંધો ના આવે। મેં કીધું તમે સાચું કહો, તમારો મોહ, તમારું અટેન્શન, તમારો લગાવ કોના પ્રત્યે વધારે? તો કે બસ આ વીક છે ને, કમજોર બીમાર, એના પ્રત્યે। મેં કીધું એક अटेंशन અને ધ્યાન એના ઉપર વધારે છે ને, એટલે જ બીમાર। मन के उपाय, मैं उपाय ये कि बे साथे इक्वल व्यवहार करो, अटेचमेंट छोड़ी दो, आने बिंदा छोड़ी दो पेली नी जेम, અને જુઓ 15 દિવસમાં શું થાય। એને હાચે છોડી દીધી, 15 દિવસમાં તો બધી એલર્જી ગાયબ થઈ ગઈ। લો, એલર્જી ગાયબ, મેડિકલ ડોક્ટર ફેલ। ઘણીવાર આ કર્મની અંદર એનું રૂપ હોય છે। એટલા માટે आंख ऊपर पट्टी बांधो, एना समान ज्ञानावरणीय छे। गेट कीपर नी जेम दर्शनावरणीय कर्म छे। तलवार ऊपर में सवारे कीधु के हनीनी तमे धार लगाड़ी दो तलवार ऊपर, एने समान वेदनीय कर्म छे।
શરાબ પીવાના સમાન મોહનીય કર્મ છે. શરાબમાં માણસ ભાન ભૂલી જાય એવી રીતે મોહમાં માણસ શું કરે છે ને શું નથી કરતો ભાન ભૂલી. હાથ અને પગમાં બેડી હોય એના સમાન આયુષ્ય કર્મ છે. ચિત્રકાર જેમ ડિફરન્ટ પિક્ચર બનાવે એના સમાન નામ કર્મ છે. અલગ અલગ શરીરોનું નિર્માણ કરે. કુંભારની સમાન ગોત્ર કર્મ છે. નાના મોટા અલગ અલગ ટાઈપના ઘડા બનાવે એવી રીતે ગોત્ર કર્મ ઊંચા નીચા કુળમાં જન્મ આપે. અને ટ્રેઝરરના સમાન અંતરાય કર્મ છે. માલિક ગમે એટલું કે પણ ટ્રેઝરરની રજા વગર ચેક મળે નહીં. Treasurer is more important than the owner. Cashier is more important than the bank manager. આ ટ્રેઝરર એ અંતરાય કર્મ છે. અવરોધ કર્યા જ કરે, ડિસ્ટર્બ કર્યા જ કરે. આ 8 કર્મનું ગણિત છે. આ 8 કર્મનું ચક્ર છે. એમાંથી બહાર નીકળવાનો એક જ ઉપાય છે, તમારા ભાવ સારા રાખો. આખી ચર્ચાનો સાર શું છે? ઇન્ટેન્શન સારું રાખવું. પાપ સાહેબ નહીં છૂટે. ઘરમાં રહીએ, સંસારમાં રહીએ, ગાડીએ ચલાવવી પડે, જૂઠું બોલવું પડે, મજબૂરી બસ આ બધું કરવું પડશે. ડરોમાં એક વસ્તુ યાદ રાખો, ઇન્ટેન્શન સારું. ગુજરાતીમાં કહેવત છે, જેની ચાય બગડી એની સવાર બગડી, જેની દાળ બગડી એનો દિવસ બગડ્યો, જેનું અથાણું બગડ્યું એનું વરસ બગડ્યું, જેનું બૈરું બગડ્યું એની જિંદગી બગડી, અને જેના ભાવ બગડ્યા એના ભવ બગડ્યા. આ ભાવને જાળવી રાખજો. ચાય બગડે તો વાંધો નહીં, ફરી બીજી વાર બની જાય, અફોર્ડેબલ છે. દાળ બગડે તો વાંધો નહીં, થોડીક મહેનત પડે બીજી વાર તૈયાર થઈ જાય. અથાણું બગડે તો વાંધો નહીં, થોડીક વધારે મહેનત પડે પણ અથાણું પણ ક્રિએટ કરી શકાય. બૈરું બગડે કોઈ વાંધો નહીં. હવે તો બીજા ત્રીજા ચોથા લગ્ન કરવાની પ્રથા ચાલુ થઈ ગઈ છે. ડિવોર્સ તો કોમન. આજના અમારા ઇન્ડિયાના છોકરાને કોઈને સગપણ થયું હોય ને 2 વર્ષમાં બ્રેકઅપ થાય હસતા હસતા કે મારું 2 વાર બ્રેકઅપ થઈ ગયું, પણ આનંદ આપણે ચિંતા નથી. આજની જવાની બ્રેકઅપ ને પણ એટલું લાઇટલી લે છે સાહેબ, એના મન ઉપર કોઈ ભાર ન હોય. ભાવ બગડ્યા તો ભાવ બગડ્યા. આ ભાવને જાળવીને આગળ વધીએ એવા ભાવ સાથે ઓમ અરહમ ઓમ અરહમ. પ્રશ્ન જરા લઈ લઈએ 2 મિનિટ ક્વિકલી. કેટલું ધ્યાનથી સાંભળ્યું છે ને કેટલું સમજ્યા છો એટલી જ ખબર પડે, એટલા માટે આ છે, બીજું કઈ. So we will do Zoom poll sessions. The question will be in front of you in Zoom and you have to answer the questions. We will give each question 10 seconds, right? So quickly, Samanji will help us read the question and then you will have less than 10 seconds to answer them. So get ready for your first question. पहला प्रश्न है, ज्ञानी को देखकर ईर्ष्या करने से कौन सा कर्म बंधता है? मोहनीय कर्म कि ज्ञानावरणीय कर्म? सिलेक्ट वन आंसर. So you have ज्ञानी exactly को देखकर ईर्ष्या करने से कौन सा कर्म बंधता है? मोहनीय या ज्ञानावरणीय? 5, 4, 3, 2, 1, end. हाँ, ज्ञानावरणीय 88% लोगों ने कहा, 12% मोहनीय कर्म. मोहनीय कर्म नहीं आएगा. ज्ञानी को देखकर ईर्ष्या करने से ज्ञानावरणीय कर्म बनता है. नंबर 2, किसी का रूप
या किसी की प्रशंसा होती देखकर ईर्ष्या करने से कौन सा कर्म बंधता है? किसी का रूप अथवा किसी की प्रशंसा सुनते समय ईर्ष्या हो जाए, उससे कौन सा कर्म बंधता है? नाम कर्म अथवा मोहनीय कर्म? Five more seconds. And we will end the poll. नाम कर्म 53, मोहनीय कर्म 47. मोहनीय कर्म नॉट करेक्ट आंसर, नाम कर्म करेक्ट आंसर. किसी का रूप देखकर ईर्ष्या हो, या किसी की प्रशंसा, किसी का गला अच्छा है, किसी की आवाज मधुर है और हमें ईर्ष्या होती है, उससे हमारा अशुभ नाम कर्म बंधता है. नेक्स्ट जन्म में हमें कुरूपता या इस तरह के नेगेटिव फॉल्ट प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट. कौन से दो मुख है जिससे मनुष्य कर्म का संचय करता है? બે મોઢા કયા જેનાથી મનુષ્ય કર્મનો સંચય કરે છે? પહેલો વિકલ્પ મોહ મમતા, બીજો વિકલ્પ રાગ દ્વેષ. Five seconds. Okay. And we will end the poll. राग और द्वेष 89%, 11% मोह और ममता. मोह और ममता नहीं, राग और द्वेष इज राइट आंसर. नेक्स्ट. ઘણા લોકો એટલા બધા સ્માર્ટ હોશિયારો જે કે જવાબ જ ના આપે, શાંતિથી બેઠા જ હોય. प्लीज 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 इन्वॉल्व योरसेल्फ. अपने को ही जज करना है, आपको किसी को पता नहीं चल रहा है कि आपने कौन सा आंसर दिया है. शराब के समान कौन सा कर्म है? एकदम एंड में मैंने बताया था, शराब के समान कौन सा कर्म? वेदनीय कर्म अथवा मोहनीय? वाओ, एक्सपर्ट. 5 seconds. 4, 3, 2, 1, and we will end the poll. मोहनीय कर्म 70%, वेदनीय कर्म 30%. 70% आर राइट, 30% आर रॉन्ग. वेदनीय कैसा आएगा? वेदनीय कर्म बीमारी का है, इसलिए मोहनीय आएगा. नेक्स्ट. This is the last question. वन मोर. लास्ट क्वेश्चन. ट्रेजरर के समान कौन सा कर्म है? ट्रेजरर अंतराय कर्म अथवा दर्शनावरणीय कर्म? Last 5 seconds. 4, 3, 2, 1, and we will end the poll. अंतराय कर्म 73%, दर्शनावरणीय कर्म 27%. 73 वाले राइट, 27 वाले रॉन्ग. बस हो गया. That was the last question, Samadhi. Samadhi, हाँ, તમારો सूचनाएं કેમેરો साथ में. સાઈડ, તમારો કેમેરો સાઈડવે થઈ ગયો પાછો. कैमरा क्या એટલે હા, એટલે અમે સીધા નથી જોતા, તમને આમ સાઈડમાં જોઈ છે. लाइट कैमरा सीधो જ, कैमरा सीधो જ. હા, એ બરાબર છે. ઓકે. ઓકે, સો અમુક બે ત્રણ સૂચના આપી દો, અનાઉન્સમેન્ટ્સ કરી લઉં. So first of all, let me announce there are altogether 28 tapascharias going on as of now, right? 28 names have come. So khub anumodna
I'm just going to share the names of all our tapasvis. You will be able to see in front of you. Paresh Bhai Shah is at 14 Apuas. Bharat Bhai Damani at 8. Nisha Sangrachka at 8. Meghna Kothari 7. Parulben Kothari 7. Aarti Parmar 6. Akshay Kumar Shah 6. Alpa Shah 6. Chandni Gandhi 6. Deepal Desai 6. Divesh Sangrachka 6. Divya Nilesh Shah 6. Sorry, that's a typo there. It's Divya Nilesh Shah. Hetvi Shah 6. Jinesh Sangrachka 6. Lajja Shah 6. Mansi Shah 6. Mona Bin Desai 6. Naisha Damani 6. Nilesh Bhai Shah 6. That's a daughter and father pair doing that. Nimish Pravin Shah 6. He's doing Mon Apuas. Preeti Jain 6. Vihan Shroff 6. Hiren Shah 6. Hiten Kumar Shah 5. Naina Ben Shah 5. Nandri Ben Jain 5. Shalu Surana 5. And Vimali Ben Shah 5. Khub Anumotna, and on behalf of the Sangh, we wish all tapasvis Sukh Sata. It's a real nice to see, despite these current difficult times of us not gathering together, the bhav of doing tapascharyas is still very high. To have 28 people doing tapascharyas in our Sangh. Khub Anumotna to all of them. Now, the next thing is we are still working out the arrangements for Samuparna for Sunday. We are in close consultations with the authorities on how we can execute this. So please give us some time. We will not be able to gather as a group at the Stanak. That is not allowed today. We are not allowed to eat at the Stanak. So most likely we will go to the individual tapasvi's house, just like we did last year. And there will be representatives of SCRS will visit the tapasvis and do the breaking of fast, paina, on behalf of the Sangh with the family, right? So just wait out. We are planning the details, and you should know by Friday and Saturday as we approach Sunday, right? The entire Samuparna program will be telecast on Zoom, just like you are attending the Zoom pravachan. Now you will get to see all the tapasvis as they log in from their homes and do paina, and as MC members visit their homes as well, right? So looking forward to that. Now, so today was day 6. Tomorrow, day 7, we will have our usual morning pravachan at 10:30 a.m. And the topic for tomorrow morning is Ahimsa Parmo Dharam, right? Another very intriguing topic. In the evening at 6:30 to 8, Stanakvasi Pratikaman will be in Zoom. And 6:30 to 8, Deravasi Pratikaman will be at the Stanak. And then in the evening at 8:15 on Zoom, we will have the Aarti Mangal Divo again, live from Stanak. And the evening pravachan tomorrow is Kevuche Mithyatva Jagat, right? So a very, very interesting topic as well. And Saman Suttam, Samanji is really putting in a lot of effort to lead us in the Swadhyay of Saman Suttam. Samanji, ખૂબ આભાર તમારો કે આટલું બધું અમને સમજાવો છો, અને એ એકદમ આમ ઇઝી હિન્દી ને ગુજરાતી ભાષામાં કે અમે લોકો સમજી શકીએ, એટલે એના માટે ખૂબ આભાર, right? So please, we have only Thursday, Friday and Saturday morning Swadhyays left, right? There is only 5 more sessions left for Pajushan 2021 Swadhyay on Saman Suttam. Please do not miss any of the Swadhyay. Okay. मांगलिक सुनाने के पहले 2 मिनट खाली लूंगा
एक तो बहुत मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि सिंगापुर जैसे छोटे जैन संघ में 28 लोगों को 28 की तपस्या और उससे ज्यादा की तपस्या है। परेश भाई शाह को 14 उपवास, आज 14th उपवास है અને હજુ તો પર્યુષણને થોડાક દિવસ બાકી છે, તો તપસ્યા ક્યાં સુધી પહોંચશે તમે કલ્પના કરી શકો છો? ઘણાને આજે હું લિસ્ટ જોતો તો 8 ઉપવાસ તો આજે છે, તો હજુ 2-3 દિવસ બાકી છે। તો ખૂબ કોઈ પણ મહાપુરુષનું સાનિધ્ય નથી, કોઈ પણ ડિગ્નિટરીનું સાનિધ્ય નથી, છતાં પણ આટલી તપશ્ચર્યા સિંગાપુર જૈન સંઘમાં થઈ રહી છે, એનો મને આનંદ છે। આના પહેલા આટલી તપસ્યાઓ ક્યારે થઈ જરાક રેકોર્ડ પરેશભાઈ જોઈને મને કહેજો। તો આ એક બહુ સારી વસ્તુ છે કે આટલા મોટા પ્રમાણમાં સંઘના ક્ષેત્રને જોતા ખૂબ સારી તપસ્યા છે। બીજી વાત મારે કહેવી હતી કે આ સમણ સુત્તમ આ વખતે મને એક એવો ભાવ થયો કે એના ઉપર વાત કરું। મને ખબર નથી કે કેવી રીતે જશે, એક આખું રિસ્ક જ લીધું હતું ઇસ પાર या उस पार, लेकिन તમારા બધાનો ભાવ અહોભાવ એના કારણે બહુ જ મને એવું લાગે છે તમારા ચહેરા જોઈને કે સિરીઝ બહુ સારી રીતે આપણી પસાર થઈ રહી છે। હવે માત્ર 2 કે 3 દિવસ બાકી છે। ખાલી તમને કહી દઉં જાણકારી માટે કે સમણ સુત્તમના આખા ગ્રંથમાં કેટલી ગાથાઓ છે? મેં તમને કીધું તું, કોઈને જવાબ આવડે છે? 756 ગાથાઓ છે। એમાંથી ટોટલ 4 ચેપ્ટર છે। આ પર્યુષણમાં સવાર સાંજના વ્યાખ્યાન ભેગા કરો તો પણ હજુ પહેલું ચેપ્ટર પૂરું નથી થવાનું। પહેલા ચેપ્ટરમાં પણ એક ચેપ્ટર સબ ચેપ્ટર રહી જાય છે, જે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે આત્માનું, અને એના માટે કદાચ ફરી એક લેક્ચર ગોઠવવું પડશે, અથવા મારે ત્યાં આવવું પડશે, અથવા તમે બધા અહીં આવીને પધારજો, આપણે કરશું કંઈક પ્રોગ્રામ, કોરોના જ્યારે બધું નીકળી જાય ત્યારે। તો હજુ તો 4 ભાગનો 25% ભાગ પણ આપણે પૂરો કરવાના નથી। આટલો ભાગ સમણ સુત્તમનો હજુ બાકી છે, અને હું તો હવે પ્રવચન આપવાનું વાઇન્ડ અપ કરી રહ્યો છું, પણ જોઈએ શું થાય છે, બીજા કોઈક આવશે, આપણે કોઈકને કહેશું કે કરે। અને ત્રીજી વસ્તુ મારે એ કહેવી છે કે સિંગાપુર જૈન સંઘ હું છેલ્લા 15-20 વર્ષથી જોઈ રહ્યો છું, સતત એમના ભાવ, એમનો અહોભાવ, એમનો જ્ઞાનની આરાધના, તપશ્ચર્યાની આરાધના સતત વધી રહી છે। અને ખૂબ લોકોએ મહેનત કરીને આ સંઘને પોષ્યું છે, એને ન્યુટ્રિશન્સ આપ્યું છે અને ખૂબ આગળ વધાર્યો છે। નગીનભાઈ દોશી બહુ જૂના આપણા વડીલ શ્રાવક, એને ખૂબ મહેનત, આજે પણ આટલી અવસ્થામાં શરીરની સાતા ન હોવા છતાં પણ જ્યારે આ વખતે પર્યુષણમાં આપણે પ્રત્યક્ષ નથી મળવાના, કોઈ ઘી બોલી નથી થવાની, લાણી નથી થવાની, છતાં પણ ફોન કરીને દાતાઓને તૈયાર કરીને સંઘમાં જે ફાળો ભેગો કરવા માટે જે પોતાની બહુમૂલ્ય સેવા આપી છે, એ ઉપરાંત પણ સિંગાપુર સંઘ તો એટલો બધો ભાગ્યશાળી છે। તો આપણે અનુમોદના કરીએ પેલા નગીનભાઈની અને એમના પૂરા પરિવારની, ઉષાબેન અને બધાનો પરિવારનો સહયોગ ન હોય તો આ વ્યક્તિ આટલું કરી ન શકે, અને સતત આટલા વર્ષોથી કરતા આવ્યા છે। હું પહેલી વાર જ્યારે ત્યાં આવ્યો સિંગાપુરમાં, મારું વેલકમ કરનાર એક જ વ્યક્તિ હતી અને નગીનભાઈ હતી। પહેલી વાર અમે અમેરિકાથી આવતા હતા 92માં, 2 દિવસ ત્યાં રોકાયેલા, કોઈ પ્રવચનો નતા, પણ 92માં હું પહેલી વાર સિંગાપુર આવેલો, ત્યારે તો જો આપણું જૂનું સ્થાનક હતું સામાન્ય, અને નગીનભાઈએ અમારી આગતા સાગતા કરેલી, આજે પણ હું એને યાદ કરું છું। એ ઉપરાંત પણ સિંગાપુર એટલો ભાગ્યશાળી સંઘ છે કે એટલા બધા દાતાઓ છે કે સિંગાપુર સંઘમાં કોઈ ફંડ ફાળાનો પ્રોબ્લેમ જ ક્યારે નથી। અમારા ભરતભાઈ મેકાની બેઠા છે, કીર્તિદાબેન ભરતભાઈ, સંઘને ક્યારેય પણ જરૂર હોય, ક્યાંય પણ પોતાનું નામ નહીં, નમ્રતા જુઓ સાહેબ, ક્યાંય પોતાનું નામ નહીં, ક્યાંય આગળ પડતું નહીં, કમિટીમાં નહીં, છતાં પાછળ પડદાની રહીને જ્યાં પણ સપોર્ટની જરૂર હોય કરે છે। બલવંતભાઈ જૈન, એ પણ મેં સાંભળ્યું એ પ્રમાણે ખૂબ ઉત્સાહથી જૈન સંઘને આગળ લાવવા માટે પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છે। આવા કેટલાય શ્રાવકો છે, અને મને તો આનંદ એનો છે કે જૂની કમિટી નવી આ યંગ કમિટી ઉપર આટલો બધો ભરોસો રાખે અને એને કામ કરવાનું મેદાન આપે અને આશીર્વાદ આપતા રહે કે તમે કામ કરો, અમે તમારી સાથે છીએ। આ તમારી યુનિટી, આ તમારી એકતા જોઈને મને ખૂબ રિયલી આનંદ છે। સંઘની આ યુનિટી, આ એકતા, આ ભાઈચારો જાળવી રાખજો, જેથી આપણે આવતા જનરેશન માટે એક સારું એક્ઝામ્પલ સેટ કરી શકીએ। એ મારી અનુમોદના પ્રસ્તુત કરીને હવે આપણે સાંભળીશું મંગલ પાઠ।
પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થઈને કરબદ્ધ હાથ જોડીને આંખો બંધ રાખીને અહોભાવ સાથે ચત્તારી મંગલમ અરિહંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ શાહુ મંગલમ કેવલી પન્નતો ધમ્મો મંગલમ ચત્તારી લોગુત્તમા અરિહંતા લોગુત્તમા સિદ્ધા લોગુત્તમા સાહુ લોગુત્તમા કેવલી પન્નતો ધમ્મો લોગુત્તમા ચત્તારી શરણમ પવજ્જામિ અરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ સાહુ શરણમ પવજ્જામિ કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનામ સર્વધર્માણામ અર્હત ધર્મોસ્તુ મંગલમ અર્હત ધર્મોસ્તુ મંગલમ અર્હત ધર્મોસ્તુ મંગલમ. હાજી વંદામી નમસ્કામી સમજી. અરહમ વંદામી નમસ્કામી. વંદામી વંદામી નમસ્કામી. આપ સૌના સદભાવથી આનંદ મંગલ પ્રસન્નતા બહુ સરસ. તો રાજુભાઈ મારે પૂછવું તું આપને મારે Thank you, everyone. We will end the Zoom session here. Thank you.